تصورنا الحرارة والبرودة ويقال له الضروري أيضا. وثانيهما نظري أي يحتاج في حصوله إلى الفكر والنظر كتصورنا الجن والملائكة، فإنا محتاجون في أمثال هذه التصورات إلى تدشن فكر وترتيب نظر، ويقال له الكسبي أيضا. والتصديق أيضا قسمان، أحدهما البديهي الحاصل من غير فكر وكسب، وثانيهما النظري المفتقر إليه. مثال الأول الكل أعظم من الجزء والاثنان نصف الأربعة. ومثال الثاني العالم حادث والصانع موجود ونحو ذلك. فصل. التصور قسمان. یہ جو فصل ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہے، اس فصل کے اندر تصور اور تصدیق کی قسمیں بیان کی ہیں. مصنف نے اس فصل کے اندر تصور اور تصدیق کی قسمیں بیان کی ہیں. تم نے جو کتاب پڑھی ہے آسان منطق، اس میں پڑھا ہوگا تصور کی تعریف اور تصدیق کے بعد میں انہوں نے بھی تصور کی دو قسمیں بیان کی ہیں اور تصدیق کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں. تصور کی دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ تصور بدیہی اور تصور نظری. ایسے ہی تصدیق کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری. مصنف نے اس فصل میں یہی چیز بیان کی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. تصور کی دو قسمیں اور ان کی مثال. تصدیق کی دونوں قسمیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری اور ان کی مثال. عبارت دیکھو، التصور قسمانی. التصور بنے گا مبتدا، اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہے مرفوع. قسمانی ہے خبر، ٹھیک ہے جی. احدہما بدیہی، یہاں پر بھی احدہما مبتدا ہے اور بدیہی خبر ہے. ای حاصل بلا نظر و کسب. کتصورنا الحرارۃ، حرارت پر نصب جو پڑھ رہے ہیں ہم، تو پڑھ رہے ہیں یہ تصور جو مصدر ہے اس کا مفعول ہے الحرارہ والبرودہ معطوف ہے. ویقال له ضروری، ضروری جو ہے یہ فعل مجهول یقال کا نائب فاعل ہے. وثانیہما نظری ای یحتاج فی حصوله الى الفکر والنظر کتصورنا الجن والملائکۃ. یہاں پر بھی نصب اسی لیے پڑھ رہے ہیں جن اور ملائکہ پر، تصور کا یہ مفعول بن جائے گا. فإنا محتاجون في أمثال هذه التصورات إلى تدشن فكر وترتيب نظر ويقال له الكسبي أيضا. یہاں تک جو ہے یہ دو قسمیں بیان کر دی مصنف نے تصور کی. اس کی تصور کی پہلے ترجمہ دیکھیں اس کا. التصور قسمانی، تصور دو قسمیں، تصور دو قسمیں ہیں. ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو عام ترجمہ ہے تصور کی دو قسمیں، تصور کی دو قسمیں ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. التصور قسمان مبتدا اور خبر ہے، اور بالکل بیانی آپ لفظوں کا ہی ترجمہ کرنا چاہیں تب بھی درست ہے. التصور قسمانی، تصور دو قسمیں ہیں، تصور دو قسمیں، مطلب اس کا یہی ہے کہ تصور کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. احدہما بدیہی، ان میں سے ایک بدیہی ہے، ان میں سے ایک بدیہی ہے. ای حاصل بلا نظر و کسب، یعنی بغیر نظر و کسب کے حاصل ہونے والی، بغیر نظر و کسب کے حاصل ہونے والی. ان میں سے ایک قسم بدیہی ہے، یعنی بغیر نظر و کسب کے حاصل ہونے والی. جیسا کہ ہمارا حرارت اور برودت کا تصور کرنا، جیسا کہ ہمارا گرمی اور سردی کا تصور کرنا. حرارت کے معنی ہے گرمی، برودت کے معنی ہے سردی. کا تصورنا، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا گرمی کا اور سردی کا. ویقال له ضروری ایضا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے ایک لائن کی، اس لائن میں کیا بیان کیا مصنف نے؟ تصور بدیہی کی تعریف اور مثال. تصور بدیہی کی تعریف اور مثال. تصور بدیہی کس کو کہیں گے؟ تصور بدیہی وہ تصور ہے جو بغیر
किसी भी चीज का हमने तसव्वुर किया, किसी भी चीज का हमने तसव्वुर किया और उस चीज में हमें बहुत ज्यादा गौर और फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अपनी जो मालूमात है हमारे दिमाग में जो मालूमात है उनको जमा करके तरतीब देने की जरूरत पेश नहीं आ रही है, जमा करके तरतीब देने की जरूरत पेश नहीं आ रही है। बस किसी चीज को बोला और फौरन वो समझ में आ जाए, फौरन वो समझ में आ जाए और फिक्र करने की जर्रा बराबर जरूरत ना हो तो उसको कहते हैं तसव्वुरे बदीही। क्या कहेंगे उसको? तसव्वुरे बदीही। किसी ने बोला गर्मी, फौरन समझ में आ जाती है। किसी ने बोला है सर्दी तो फौरन समझ में आ जाती है। भाई गर्मी जो है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा गौर और फिक्र नहीं करना, गर्मी क्या चीज होती है। आग को आप छू के देखें फौरन समझ में आ जाता है गर्मी क्या चीज है। सर्दी के लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती गौर और फिक्र की, बर्फ को आप छू करके देख लें फौरन समझ में आ जाती है कि ठंडी और सर्दी जो है ये चीज होती है। तो इसमें गौर और फिक्र की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं तसव्वुरे बदीही। क्या कहेंगे इसको? तसव्वुरे बदीही। वयुक़ाल लहु ज़रूरिय्यु अयज़न, ये तसव्वुरे बदीही का दूसरा नाम जिक्र कर रहे हैं मुसन्निफ कि तसव्वुरे बदीही को जरूरी भी कहा जाता है, तसव्वुरे जरूरी भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। वसानिहिमा नज़रियुन, और दूसरी जो किस्म है वो नजरी है। क्या है? नजरी है। नजरी किसको कहेंगे? अय यहताजु फी हुसूलिही इलल फिक्री वन नजरी, यानी मुहताज हो उसके हासिल करने में फिक्र व नजर के, यानी मुहताज हो उसके हासिल करने में फिक्र व नजर के। और फिक्र जिसमें करना पड़े, जो बगैर और फिक्र के समझ में ना आए, उसको तसव्वुरे नजरी कहते हैं, उसको तसव्वुरे नजरी कहते हैं। जैसे जिन, किसी ने बोला तो जिन समझ में आता है क्या चीज होती है? कोई समझ में आता ही नहीं क्या चीज है। फरिश्ता किसी ने बोला तो हमें समझ में आता है फरिश्ता क्या होता है। बाकायदा उनकी तारीफ करने की आपको जरूरत पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि जिन किसको कहेंगे? जिन आग से बनी हुई एक मखलूक है, जिन आग से बनी हुई एक मखलूक होती है जो नजरों से ओझल होती है, नजरों से ओझल होती है, दिखाई नहीं देती है, उसमें मर्द भी होते हैं, उसमें औरतें भी होती हैं। ये बात आप समझाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ही फरिश्ता किसको कहेंगे? तो समझाना पड़ेगा कि फरिश्ता नूर से बनी हुई एक मखलूक है, नूर से बनी हुई एक मखलूक है जो आंखों से नजर नहीं आती बल्कि ओझल होती है। उनमें ना मुज़क्कर होता है, ना मुअन्नस होता है, ना मर्द होते हैं, ना ही औरत होती है। तो इस तरीके से आप समझाएंगे तब जिन और फरिश्ता समझ में आता है। बगैर समझाए जिन और फरिश्ता समझ में नहीं आता। तो इसलिए इसको कहेंगे तसव्वुरे नजरी, तसव्वुरे नजरी। वसानिहिमा, और दूसरी किस्म नजरी है, यानी मुहताज हूँ उसके हासिल करने में फिक्र व नजर के, जैसा कि हमारा जिन्नात का और फरिश्तों का तसव्वुर करना। फ़इन्ना मुहताजूना फ़ी अमसालि हाज़िही तसव्वुराति, हम मुहताज होते हैं इन तसव्वुरात की मिसालों में इला तजश्शुनि फिक्रिन, फिक्र करने के, तजश्शुन का तर्जुमा कुछ करना कर रहे हैं यहाँ पर, फिक्र करने के, व तरतीबी नजरिन, और नजर को तरतीब देने, और नजर को तरतीब देने का। ये फिक्र व नजर क्या चीज है, आगे उसको ये समझाएंगे खुद ही कि फिक्र व नजर ये क्या चीज होती है। वयुक़ाल, बस यहाँ पे गौर व फिक्र समझिए आप, यहाँ पर इसका तर्जुमा सिर्फ गौर व फिक्र समझिए। वयुक़ाल लहुल कसबिय्यु अयज़न, और इसको कसबी भी कहा जाता है। तसव्वुरे नजरी का दूसरा नाम तसव्वुरे कसबी है। तसव्वुरे नजरी का दूसरा नाम है तसव्वुरे कसबी। कसबी क्यों कहते हैं? कसबी के माने आते हैं कमाना, हासिल करना, हासिल करना। चूंकि इसमें गौर व फिक्र करके इसको हासिल करते हैं इसलिए इसको कहते हैं कसबी। क्या कहते हैं इसको? कसबी। इतनी बात समझ में आ गई। व तस्दीक़ु अयज़न क़िस्मान, तस्दीक की भी दो किस्में हैं, तस्दीक की भी दो किस्में हैं। हमने पढ़ा ही आसान मंतिक़ के अंदर कि तसव्वुर की तरह तस्दीक की भी दो किस्में होती हैं, तस्दीक़ बदीही होती है और तस्दीक़ नज़री होती है। तस्दीक़ बदीही वो तस्दीक है जिसमें हाँ जी, जिसमें किसी बात की दलील लाने की जरूरत ना हो, बगैर दलील के समझ में, बगैर दलील के समझ में आ जाए, उसको क्या कहेंगे? तसव्वुरे बदीही। और जिसमें बाज़ाब्ता दलील पेश करने की जरूरत हो उसको कहेंगे
तस्दीक नजरी, क्या कहेंगे उसको? तस्दीक नजरी कहेंगे। देखो उसी को बता रहे हैं। व तस्दीक अयदन इस्मानी, और तस्दीक की भी दो किस्में हैं, उनमें से एक बदीही है, अल हासिलु मिन गैरि फिक्रिन व कसबिन, जो हासिल हो बगैर फिक्र व कसब के, जो हासिल हो बगैर फिक्र व कसब के। वसानीमा अन नजरियु, और दूसरे नजरी है अल मुफ्तकिरु इलैहि, इसमें फाइल बसेगा अल मुफ्तकिरु, जो मुहताज हो उसकी, यानी फिक्र व कसब की, इसकी फिक्र व कसब की। आगे इन्होंने दोनों की मिसाल दी। मिसाल अव्वली, पहले की मिसाल, पहले से मुराद है तस्दीक बदीही, तस्दीक बदीही की मिसाल क्या दी है? अल कुल्लु अअज़मु मिनल जुज़ई, कुल जुज़ से बड़ा होता है, कुल जुज़ से बड़ा होता है। समझ में आ गई बात? अब इसमें दलील लाने की जरूरत नहीं है। भाई कोई चीज है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, आपने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काट लिया, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट लिया है, तो बड़ा कौन हुआ? वो जो हिस्सा काटा है वो बड़ा है, जो बड़ी चीज वहां पर रखी वो बड़ी है? सही बात, वो बड़ी है। या मिसाल के तौर पर आप अगर मंतिक की जबान में समझे तो इंसान जो है उसकी हकीकत है हैवाने नातिक, इंसान की हकीकत क्या है? हैवाने नातिक है। हैवान उसका एक जुज है और नातिक भी उसका एक जुज है, तो जाहिर है नातिक जो है ये हैवाने नातिक से बड़ा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। हैवाने नातिक वहां पर दो चीज आ रही है और नातिक में सिर्फ एक चीज है, तो नातिक जो है ये हैवाने नातिक का जुज है, हैवाने नातिक का जुज है, तो ये छोटा है और कुल जो है वो बड़ा है। तो इसमें दलील लाने की जरूरत नहीं, इसमें दलील लाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये चीज समझ में आ जाती है, खुद ब खुद ये चीज समझ में आ जाती है। अब मदरसा है पूरा, ये पूरा हमारा जो 12, 13, 15 कमरे जितने भी हैं, ये पूरा एक मदरसा है। अब जिस कमरे में हम बैठे हैं ये इसका एक जुज, ये इसका एक जुज है। अब इसमें दलील लाने की जरूरत होगी कि ये जो कमरा है ये पूरे मदरसे से छोटा है, इसमें दलील लाने की कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी जरा सी अकल जिसके पास होगी वो समझ जाएगा कि पूरे मदरसे से मदरसे का एक कमरा जो है वो जाहिर बात है छोटा होगा। अल कुल्लु आज़मु मिनल जुज़ई, कुल जुज़ से बड़ा होता है, कुल जुज़ से बड़ा। वल इस्नानी बिस्कुल अरबा, 2 4 का आधा है, 2 4 का आधा है, इसमें दलील लाने की जरूरत नहीं। जरा सी अकल आपके अंदर है, आदमी समझ जाएगा कि 2 4 का आधा ही होता है। 4 2 का क्या होता है? 4 2 का डबल होता है, 4 2 का डबल होता है, नहीं होता है? 4 जो है ये 2 का डबल है। अब इसमें दलील लानी पड़ेगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये है तस्दीक बदीही, तस्दीक बदीही। तस्दीक नज़री किसको कहेंगे? जिसमें और फिक्र की जरूरत हो, दलील लाने की जरूरत हो। जैसे अल आलमु हादिसुन, व मिसाल सानी, दूसरे की मिसाल जैसे अल आलमु हादिसुन, आलम हादिस है, फना होने वाला है, नौपे, फना होने वाला है, नौपे। अब इसमें दलील लाने की जरूरत, आलम हादिस, आलम फना होने वाला क्यों, ये दुनिया फना होने वाली क्यों? इसको बगैर दलील के समझ में आप समझना चाहें तो नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए बाद आपका दलील लाई जाएगी, क्या लाई जाएगी? दलील लाई जाएगी। जो चीज़ें हमारे पास मालूम है उसको तरतीब दिया जाएगा, फिर उस तरतीब से नतीजा जो निकलेगा उससे पता चलेगा कि आलम हादिस है। मिसाल के तौर पर आलम हादिस में इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि आलम के अंदर तब्दीली होती रहती है, आलम के अंदर तब्दीली होती रहती है, और हर वो चीज़ जिसके अंदर तब्दीली होती रहे वो हादिस होती है, वो ख़त्म होने वाली होती है। हर वो चीज़ जिसके अंदर तब्दीली होती रहे वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो इससे पता चला दुनिया भी एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी दलील है अल आलम हादिस, आलम हादिस है। इसकी दलील क्या है? अल आलम मुतगय्यिर, अल आलम मुतगय्यिर, आलम बदलता रहता है, तब्दीली होती रहती है। व कुल्लु मुतगय्यिर हादिस, और हर बदलने वाली चीज़ फना होती है। फल आलम हादिस, आलम के अंदर तब्दीली है तो आलम भी हादिस, आलम भी हादिस है। अगली बात समझ में? ऐसे ही अस्सानी मौजूद, इस दुनिया को बनाने वाली जात मौजूद है, इस दुनिया को बनाने वाली जात मौजूद है, बगैर दलील के मान लेंगे आप मौजूद है?
भाई दलील तो होनी चाहिए ना कि दुनिया को बनाने वाली कोई ज़ात है, वो मौजूद है तो क्यों है, इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है। तो इसकी बात आपका दलील आपको जिक्र करनी पड़ेगी कि दुनिया को बनाने वाला जो है, दुनिया को बनाने वाला साने, कौन, साने, ये मसनू के अंदर मुअस्सिर है, मसनू के अंदर यानी अपनी बनी हुई चीज़ों में उसका असर है, वो अपनी बनी हुई चीज़ों में असर डालता है, असर डालता है, और उसकी बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं, उसकी बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं, तो बनाने वाला भी क्या है, मौजूद है। अस्सानिउ मुअस्सिरुन फिल मस्नूइ, अस्सानिउ मुअस्सिरुन फिल मस्नूइ, साने बनाने वाला असर डाल रहा है अपनी बनी हुई चीजों में, वल मस्नू मौजूद, और बनी हुई जो चीजें हैं दुनिया वगैरह ये मौजूद है, इससे पता चला कि बनाने वाला जो है साने वो भी मौजूद है। अगर साने मौजूद ना होगा तो बनी हुई चीजों में असर कैसे आएगा, बनी हुई चीजों में असर कैसे आएगा उसका, ये अलग अलग असर नहीं है कि सूरज का अपने वक्त पर निकलना, सूरज का अपने वक्त पर गुरूब हो जाना, फिर चांद का निकलना, चांद का गुरूब हो जाना, दिन का अपने वक्त पर तुलू होना, अपने वक्त पर गुरूब हो जाना, रात का वक्त पर आना, वक्त पर ही चले जाना, तो ये जो सारी चीजें हैं अल्लाह ताला का बनाने वाले का असर ही तो है, असर मौजूद है तो इससे मालूम है बनाने वाला भी, तो इसकी एक दलील है, इसके बाद आपका दलील, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में इतनी। तो कुल मिलाकर क्या बयान किया इन्होंने, तसव्वुर की दो किस्में बयान की, तसव्वुर बदीही, तसव्वुर नजरी, और तस्दीक की दो किस्में बयान की है, तस्दीक बदीही, तस्दीक नजरी। एक मर्तबा तर्जुमा इसका देख लो, अत-तसव्वुर किस्मानी, तसव्वुर की दो किस्में हैं, अहदुहुमा बदीहियुन, उनमें से एक बदीही है, अय हासिल बिला नजरिन व कस्ब, यानी हासिल होने वाली है बगैर नजर व कस्ब के, जैसा कि हमारा गर्मी और सर्दी का तसव्वुर करना, वह युकाल लहु ज़रूरी अइज़न, और इसको ज़रूरी भी कहा जाता है, और उनमें से दूसरा नजरी है, यानी मुहताज हूँ उसके हासिल करने में फिक्र नजर के, जैसे हमारा जिन और फरिश्तों का तसव्वुर करना, फ़इन्ना मुहताजुना फ़ी अमसालि हाज़िहि तसव्वुरात, हम मुहताज हैं इन तसव्वुरात, इन जैसे तसव्वुरात, फ़ी अमसालि हाज़िहि तसव्वुरात, इन जैसे तसव्वुरात में, फिक्र करने के, व तरतीब नज़र, और नज़र को तरतीब देने के, व युक़ाल लहु कस्बी अइज़न, और इसको कस्बी भी कहा जाता है, व तस्दीक अइज़न किस्मानी, और तस्दीक की भी दो किस्में हैं, उनमें से एक बदीही है, अल हासिल मिन गैरि फ़िक्रिन, जो हासिल हो जाए बगैर फिक्र के, व कस्बिन, और बगैर कस्ब के, व सानिहिमा नज़री, और दूसरी किस्म नज़री है, अल मुफ्तक़िर इलैहि, जो फिक्र कस्ब की मुहताज हो, हाज़िर का जो मर्जा है वो फिक्र कस्ब है, जो फिक्र कस्ब की मुहताज है। पहले की मिसाल यानी तस्दीक बदीही की मिसाल, अल कुल्लु आज़म मिनल जुज़ई, कुल जुज़ से बड़ा होता है, वल इस्नानी निस्फुल अर्बा, और 2 4 का आधा है, व मिसाल सानी, और दूसरे की मिसाल यानी तस्दीक नज़री की मिसाल, तस्दीक नज़री की मिसाल, अल आलम हादिसुन, आलम हादिस है, मौजूद है, फना होने वाला है, व साने मौजूदुन, और साने मौजूद है, व नहु ज़ालिक, और इसकी जैसी बहुत सारी